बिहार में ट्राइबल्स कितने हैं, उनकी प्रतिशत में संख्या कितनी होगी? What is this concept of addressing the judges as milords? Whose lords are these people? कॉग्निटिव रेवोल्यूशन क्या है? May I come in, sir? Come in, please. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon. Please take your seat. Thank you, sir. So, your medium of interview is going to be English or bilingual? Bilingual. I am comfortable in bilingual also. Fine. So, ठीक है. So, आप अपना एक परिचय दीजिए, नाम बताए बिना. So, I have completed my graduation from Malvi National Institute of Technology, Jaipur. My hobby is running, and I am now pursuing my career in competitive exams. I am trying to get into public services, civil servants. Right. So, आपकी ब्रांच क्या रही? So, I have completed my from metallurgical and material science और कब पास किया आपने? in 2020. उसके बाद आपने कहीं जॉब नहीं है अब No, sir. ट्राई की? No, sir. I am preparing for competitive exams. मेटलर्जी में तो आजकल काफ़ी कुछ हो रहा है. हेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स में काफ़ी कुछ हो रहा है. Yes, sir. आपको ये एक्साइट नहीं कर रहा है ये फील्ड? सर एक्साइट करता है सर. हाँ. लेकिन मैंने कोविड-19 के समय देखा है कि कितना डायरेक्ट सोशल इम्पैक्ट सिविल सर्विसेज का है सर. और ग्रास रूट लेवल पे इनको डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अधिक हैं. जो मेन कॉजेज़ हैं हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के, पावर्टी और एजुकेशन, सर उसको इम्प्रूव करने में काफ़ी सिविल सर्विसेज का इम्पोर्टेंट रोल है. ठीक है. बिहार में ट्राइबल्स कितने हैं, उनकी प्रतिशत में संख्या कितनी होगी? सर 1.5%. 1.5 only? Sir. हाँ, you are correct. Yes, sir. Can you name a few tribal groups which are, found in Bihar in significant numbers? Yes, sir. They are mainly of two categories, Proto-Australoid and Mongoloid ones. Sir, in Proto-Australoid ones, Santhals, Ho and Munda. And in the Negrito ones, there are Orang, and in the Banka region, Munda is also found. There is one particular tribe which is found in Bihar as well as in Uttar Pradesh. Tharu tribe. Tharus, yeah. Yes, sir. So, कहाँ मिलेंगे ये? बिहार के किन जिलों में मिलेंगे ये? Sir, in the near to hills region, Western Champaran. Western Champaran. Yeah, you are Mainly. correct. ठीक है. Anthropology आपने पढ़ा है? Yes, sir. एक theory of isolationism है. Yes, sir. It was given by whom? Tribal के context में? Sir, it was given Warrior Elwyn. Warrior Elwyn. National Park theory. हाँ, ठीक है. Yes, sir. So, was it really beneficial for, tribal, developmental aspects of tribal? Sir, he has also helped in the formation of NEFA policy, Panchsheel Agreement along with Jawaharlal Nehru, which he implemented in northeastern region, in which they were given autonomous district councils, and they were provided opportunities to govern themselves only. Due to which there are issues, but the regions, states like Arunachal Pradesh and parts of Manipur, Nagaland, they are quite stable. There are no cases of major violence in the Arunachal Pradesh belt or in upper parts of Assam. अच्छा, इसकी एक आलोचना होती है, क्रिटिसिज्म ये है कि इन्होंने ट्राइबल को पूरा आइसोलेट करके रखा और इसके कारण इंडिया के मेन स्ट्रीम से ये जोड़ नहीं पाए. प्लस वहाँ ये क्रिश्चियन मिशनरीज का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा होने लगा. काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जन हुआ. इंडिया का जो मेन स्ट्रीम सिविलाइजेशन है उससे ये धीरे धीरे कटते चले गए और इसने धीरे धीरे सेक्टेरियन वायलेंस को भी जन्म दिया. डू यू अग्री विद दिस कॉन्सेप्ट? Sir, there are instances of conversion and the spread of terrorism and Naxalism in those areas. But नक्सलिज्म तो नहीं रहा है नॉर्थ ईस्ट. insurgency, sir. Insurgency, left-wing right. Yeah. insurgency. But sir, this is not a one-size-fit-all approach case. It fits in some cases, but not in all. As there are around 1,600 types of minimal, small tribal groups in northeastern region, including Myanmar part. So there are cases that we should follow the principle of assimilation also.
Jawaharlal Nehru took steps and clubbed both isolation and assimilation theory and Fine. formed integrationist approach. Right, thank you. White man's burden की theory क्या है? So I cannot listen. White man's burden. Oh, yes. White man's burden theory is propagated by the scholars of Britishan. They said that the culture of Occidental region is very poor. They need to improve their culture. They need to teach them how to live, how do not go for which clothes they should wear, do not go for hunting and foraging. They should grow their crops to ensure food security, to remove poverty. They think that their culture is superior. But in the nationalist approach theory, they said that India was superior culture, as we have propagated Indus Valley civilization towards. Fine. So this particular point of view has been ingrained in our mentality so deep that till date we see that when people are speaking in their regional languages, or for that matter any other language apart from English language, when they are subscribing to their local beliefs and thought systems, they are considered to be backward, even by the so-called educated class of our country. How do we move past this notion? Sir, surely this is the problem of India nowadays, that we are not proud of our own culture. But government has taken steps, like government is trying that to convert the languages and books which are included in the curriculum of our through national education policy, in which 3 language formula government has inculcated. Government is trying that in the 350A article that in mother tongue we should teach at the primary level. So to remove this from the society level, these initiatives only can push, legal initiatives can only push, but society. Do you think that the judiciary in our country is also carrying forward this colonial legacy? Sir, there is an arena in judiciary that the policies and the judgments which are given they are only in the English languages, but it is mostly due to the honor which needs to be given to the judiciary and the colonial arena. What is this concept of addressing the judges as milords? Whose lords are these people? Sir, they are seen as God because their judgment will influence. So that is where the concept of democracy goes for a toss? No, sir. The position of judge is quite high, sir, because he has to challenge the parliament also. He has to keep checks and balances on parliament also. So there is a need to give. So you are okay with the continuance of the system? No, sir. I want that there should be some interruption, like there has been inclusion of Bhashini app, according to which Right. and the legal aid also NALSA is providing. I think that with respect there should also be inclusion of. Okay, fine. So with regards to the functioning of judiciary, the pendency of cases has been a long pending affair that requires urgent reforms. So what reforms can you suggest? So to remove the pendency of cases, I can suggest 3 reforms. In the technological era, there is a need to improve the e-courts and the apps, mobile apps. We can include AI in that, so that the cases which are of the same kind can be given judged by the AI. AI can be used to give their judgment. In the educational arena, I want to improve the tendency of the advocates, because there is a problem in advocates that they try to pull the cases for a long time, due to which there is no proper So you want to put in a structured timeline Yes, for sir. the advocates also to function. Yes. Fine, thank you. Oh, thank you, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन क्या है? ma'am. I am not sure, but I can guess. A cognitive revolution is in which there is a emphasis on making analytical skills and अच्छा, कोई बात sorry. नहीं. टेल मी समथिंग, हमारा जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है या ओवर यूज़ हम करें, इज इट ऑल्सो हैम्परिंग आवर डिसीजन मेकिंग स्किल्स? Yes, ma'am. There has been saying that this technological use. आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी? Yes, ma'am. लेट्स कंटिन्यू इन हिंदी. जो टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से जो IQ लेवल है बच्चों का, वो काफ़ी रिड्यूस हुआ है. ये कहा जाता है कि जो स्क्रीन टाइम की वजह से जो
IQ लेवल है वो और जो वर्डिंग्स हैं अब जो मुंह में जो यू शुड बी एबल टू मेक प्रॉपर वर्डिंग्स दे आर नॉट नहीं आ रही, बट सर बच्चों में या एडल्ट्स में भी जिस तरीके का कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं उसी तरीके के रिकमेंडेशंस हमारे पास आती हैं. Yes, तो हमें बायसनेस की तरफ नहीं मूव कर रहा है ये ओवर यूज ऑफ AI एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी? मैम बायसनेस की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ रुकावटें जो हैं उनको रिमूव करने की ज़रूरत है. कुछ है रेगुलेशंस? रेगुलेशंस मैम जैसे DPD डिजिटल प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके अगेंस्ट उसमें बताया गया है कि जो कंटेंट क्रिएटर है और जो कंटेंट रेगुलेटर है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी जो उनके ऊपर केसेस आ रहे हैं, और जो कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है उसको AI के थ्रू सर्टेन वर्डिंग्स के थ्रू. अच्छा, ऑन एन एवरेज एक इंसान का कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ हेल्दी स्क्रीन टाइम? Ma'am, I have not read anywhere, but I can guess. Take a guess on an individual perspective. I think, ma'am, 2 hours. 2 hours can be good for. अच्छा, ठीक है. आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स के बारे में पढ़ा होगा आपने? Yes, ma'am. क्या कौन थे ये? Ma'am, in the initial phases, in the formative phases, when the anthropology was evolving, field level participation was not there. The initial British and German diffusionist scholars like Morgan, Tyler, and initial Aristotle and Max Weber also, they were doing just without going to the field level from the reading. Can you define culture for me? Yes, ma'am. According to E.B. Tyler, culture is the complex whole of knowledge, beliefs, customs, morals, arts and और ये languages. civilization से कैसे अलग है? Ma'am, civilization is what we have, and culture is who we are. It is given by McIver and Math. That ठीक है. Matriarchal tribes पाई जाती हैं इंडिया में? Yes, ma'am. कहाँ? In the southern regions and in the northeastern. In the southern regions, Nayars and Todas. I've seen that. And how is it different from a matrilineal society? Ma'am, matrilineal society, there is only property is given to the son of the sister. ठीक है. And matrilocal क्या है? Matrilocal is related to residence. Okay. Define that for me, please. Oh, matrilocal is a type of marriage in which the property is not given, but the maternal uncle has to take care of the residence needs of her sister. Okay, so ऐसी कोई भी tribes बिहार में पाई जाती हैं? Sorry, ma'am, I'm not right. कोई नहीं. Strait of Hormuz कहाँ है? Strait of Hormuz is in Arab between. Who controls it? The country? Iran. Iran. So ईरान ने अभी temporarily कुछ parts को shut down किया for a drill. Yes. So global trade पे इसका कैसा impact पड़ रहा है? Ma'am, that Strait of Hormuz is a place where lot of countries has oil production capacity. Oil production capacity सबकी बहुत अधिक है वहाँ पे. इसलिए oil का movement जो इस समय main energy source है, उसके लिए वो मेन सप्लाई चेन ब्लॉकेज बनेगा, जिसका इफेक्ट हमें मिलेगा कि जो एग्रीकल्चर के प्राइसेस हैं. और ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्रिटिकल मिनरल्स कितने हैं इंडिया में? द नंबर? मैम, आई एम नॉट अवेयर ऑफ. रेयर अर्थ मेटल्स कितने होते हैं? 15 F ब्लॉक एंड स्कैंडियम मेटल. ऑलराइट, थैंक यू. मेटलर्जी की आपने पढ़ाई की है. यस सर. बिहार में क्या कुछ ऐसे समुदाय हैं या कम्युनिटीज़ हैं जो कि मेटलर्जी में इन्वॉल्व हैं, तो मेटल रिलेटेड वर्क्स करती हूँ, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और मे बी सम काइंड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सम काइंड ऑफ मेटल? सर, लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स है सर. अरे नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ की कम्युनिटीज़ कुछ ऐसी हैं क्या जो मेटल्स में काम करती हूँ, ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़? सर एग्जैक्ट नाम तो मुझे नहीं याद है. ठीक है. लोहे में काम करने वाली कम्युनिटीज़ को क्या बोलते हैं यहाँ? लोहार्स बोलते हैं. यस. तो लोहार्स को पहले बिहार सरकार ने PVC से निकाल के STs की सूची में रखा था, स्टेट लिस्ट में. यस सर. फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें वापस EBC की श्रेणी में डाल दिया. क्या लगता है कि लोहार्स आर फिट टू बी इन STs कम्युनिटी? सर, STs एंथ्रोपोलॉजिकली whether they are close to EBCs or STs? Sir, I think they are more close to EBCs because sir, STs are those communities which have been geographically isolated.
which have not developed their own dialect, and they have shifting cultivation type. They believe in foraging and not settled lifestyle in the past. So Lohars have been part of the settled lifestyle, and they have not been so isolated that they can not be merged with the mainstream society. Right. So I think Fine. Do we have any metal which can be, explored in a viable manner in Bihar? sir, but I think it should be gold, because nowadays it is seen. I'm listening from a very large time that in Jamui there has been large amount of gold has been found. उसको निकालना क्या economically viable है? It has not been studied, so I think it is not economically viable. In that case, sir, I will go for hematite and magnetite, which is found in the Banka, Jamui region, Munger region. Sapiens. No, sir, I have not read. Anthropologist के बीच में आजकल काफी चल रही है चर्चा इस बुक की. Yes, sir. है ना? Yes, sir. उन्होंने ये माना है कि इस बुक में युवाल नोआ हरारी मानते हैं कि ये जो सेटल्ड एग्रीकल्चर का जो नॉर्म है या एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन जो है, दिस इज द बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ हिस्ट्री. ये मानते हैं कि हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा फ्रॉड है. क्यों माना होगा उन्होंने इसे? यू कैन गेस एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट. Sir, settled agriculture in the initial times, sir, there was nothing like fertilizers and emphasis. नहीं, वो नहीं. इसने ह्यूमन लाइफ को या ह्यूमन हिस्ट्री को कैसे इम्पैक्ट किया? The way we lived before settled agriculture. I think, sir, before settled agriculture, there was more emphasis on collecting fruits and which were fine. Or maybe hunting also. Hunting also. But after that, we have developed the teeth. As we evolved, we developed fire, and as we developed settled agriculture, we have lost our fat quantity also, and the amount of food which we intake has increased, which has caused obesity and hypertension also. You are close. Fine. Thank you. Let me go. Okay. Thank you. Interview is over. Thank you. Sit down, please. So look, your interview is scheduled for tomorrow. Yes, sir. So just a small piece of advice for you. बहुत लंबा आपको नहीं देंगे क्योंकि करने के लिए उतना टाइम भी नहीं है. आपका इंटरव्यू एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक बहुत अच्छे नॉलेज बेस होने के बाद, कैसे बहुत अच्छे कम्युनिकेशन होने के बाद इंटरव्यू को मेसअप किया जा सकता है. ठीक. तो ये क्यों हो रहा है मैं बता रहा हूँ. एक ही प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा. लैंग्वेज का जो डेकोरम है उसको आप ठीक से फॉलो कर लो. ठीक. अगर आपने बोला है कि मिक्स लैंग्वेज में करना है, सो थंब रूल ये है कि अगर बोर्ड आपसे हिंदी में पूछे तो हिंदी में जवाब दे दो, इंग्लिश में पूछे तो इंग्लिश में दे दो. स्टिक टू इट, दैट्स इट. बाकी आपके पास आइडियाज़ हैं, गजब के हैं, सभी कुछ अच्छा है. ठीक. और कुछ प्रॉब्लम हमें दिखी ही नहीं. ये बहुत मेसी हो जा रहा है कि लगातार हिंदी में पूछने से भी आप इंग्लिश में बोल रहे हैं. हाँ. अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी आप सोचिए. बोर्ड को ऐसा लगेगा कि यू आर अ कैंडिडेट में भी, अगर उनको लग गया कि आप बगल वाले स्टेट से हैं तो उनको ये भी पता लग जाएगा आपके प्रोफाइल को थोड़ा बहुत एनालाइज करके, ये तो यूपीएससी भी देते होंगे. सो आपको वो बिहार के लिए सूटेबल शायद नहीं मानेंगे फिर. ठीक. कि जिसको बिहार की भाषा ही नहीं आती हो. ठीक. भाषा का मतलब है कि इंग्लिश आ सकती है लेकिन वर्केबल भाषा नहीं है बिहार में ना. वो प्रशासन में यहाँ हिंदी ही चलता है. हिंदी. दूसरी बात यह है कि इंजीनियरिंग के आप बैकग्राउंड से आए हैं. ठीक. जैसे आप मालवीय बोलेंगे तो उनको लगेगा मालवीय या तो यूपी में, या आपकी वैसे कहाँ थी? जयपुर में. एक मालवीय करके आपका गोरखपुर में भी है ना? मदन मोहन मालवीय. ठीक है. तो उनको लगेगा कि चूंकि बिहार में तो नाम ये सुना नहीं होगा, तो उनको लगेगा कि अच्छा बाहर का है तो एक बार बिहार में इसका फिटमेंट होगा या नहीं चेक कर लेते हैं. सो फिटमेंट बाकी चीज़ों में तो बाद में करेंगे, सबसे पहले तो लैंग्वेज में ही होगा चेक. सो लैंग्वेज में ना मिक्स लैंग्वेज रखिए, खूब सारे टर्म्स बोलिए इंग्लिश में, धड़ल्ले से बोलिए. एक दो बार सेंटेंस फ्लो में निकल भी जाए हिंदी का इंग्लिश, एक लाइन निकल जाए तो फाइन, बट फिर से जल्दी से हिंदी में आ जाना है. ठीक. yes.
बाकी सभी कुछ एक्सीलेंट था, आपके एंथ्रोपोलॉजी की नॉलेज हो या सभी कुछ, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। मेटलर्जी में भी ठीक है। जैसे मैम ने हेल्प किया था मुझे शायद डायरेक्शन हिंदी की तरफ करने की, हाँ लेकिन वो बार बार मैं जाके वापस आ जा रहा था, हाँ, टर्म्स नहीं आ पा रहे थे मेरे को। टर्म्स बोलिए ना, टर्म्स इंग्लिश में बोलिए धड़ल्ले से, हिंदी में नहीं बोलना है टर्म्स। लेकिन जैसे आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं ना, दोस्तों के साथ क्या आप इंग्लिश में बात करते हो? नहीं सर, हिंदी। उसी लैंग्वेज में बात करिए। दोस्त नहीं, उनको प्रोफेसर समझिएगा अपने, रेस्पेक्टफुली हम्बल वो वाला रखिएगा, बट कॉन्फिडेंट। तो बाकी सभी कुछ ठीक है, बाकी किसी चीज़ में आपको हम लोग कुछ सुझाव अभी नहीं दे रहे हैं एज ऑफ नाउ। केवल इस लैंग्वेज का रायता वहाँ नहीं फैलाना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, नंबर उसमें कटेंगे, तो इसका ध्यान आप रखेंगे। और अभी आज का न्यूज़पेपर आप एक बार देख लेंगे, और कल कब है, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ? सेकेंड हाफ। तो न्यूज़पेपर देख के जाएंगे। हाँ। कई सारे क्वेश्चंस की सेटिंग उसी पर होगी, या आपसे चर्चा हो सकता है वहीं से वो शुरू करें। ठीक, तो एगो न्यूज़ होगा, शायद वो आपके एंथ्रोपोलॉजी प्रोफाइल से कनेक्ट करके कुछ न्यूज़ पूछ ले, या शायद मेटलर्जी से कनेक्ट करके कुछ पूछ ले। अगर कुछ उस पर रिलेटेड कुछ न्यूज़ आया हो तो, नॉट नेसेसरली मेटलर्जी, बट नॉन मेटल्स में भी अगर कुछ हो रहा है यहाँ पर तो वो भी पूछ सकते हैं, जैसे सैंड की माइनिंग पूछ सकते हैं। ठीक, यस। सो सैंड माइनिंग लीगल इलीगल, उसके कुछ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि मानसून के समय में सैंड की माइनिंग नहीं करनी है, क्या उसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकता है, वो सभी कुछ। ठीक, तो एज ऑफ नाउ केवल इतनी एडवाइस है कि लैंग्वेज का रायता नहीं फैलाना है, बिल्कुल एकदम जो पूछा जाए वही करिए। अगर आपने ऐसा कर दिया, सो बिलीव अस, यू आर एमंग टॉप 2 और टॉप 3 परसेंटाइल ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक, उतनी नंबर लाने की आपकी रेंज बनती है। ठीक है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? सर, यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन कम्युनिटी। आपने पूछा है कौन सी कम्युनिटी है जो मेटल से रिलेटेड काम करती है। लोहार है, ठीक बोला आपने। अच्छा, हाँ, लोहार। तो आपके यहाँ भी होते होंगे। हाँ बिल्कुल सर। अब चूंकि यहाँ पर जब आया कि भाई उनको एसटी में रखें या ईबीसी में ही रहने दें, हाँ। तो यहाँ एंथ्रोपोलॉजिस्ट से राय ली गई होगी, भाई बताओ ये कौन से लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इनको वापस भेजा ना, तो वहाँ आपसे राय ली जा सकती है, बताओ भाई एंथ्रोपोलॉजिकली ये कहाँ फिट हैं, और आपने ठीक उनको डिफाइन किया। यस। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोल बैक कर दिया, दैट्स इट। नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा अच्छे से रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट के जो इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, अभी वहाँ फिर से मणिपुर में नए मुख्यमंत्री आए। यस। तो एंथ्रोपोलॉजी के बहाने आपसे मणिपुर के विवाद को समझने में वो हेल्प ले सकते हैं। ठीक, पूछेंगे कि भाई ये कुकीज़ और मैथीज़ के बीच का जो विवाद है, इसका कुछ एंथ्रोपोलॉजिकल सेटअप भी है क्या? ये केवल लैंड की लड़ाई है या उसके बियॉन्ड है? ठीक, यस सर। सो ये सब आपसे पूछ सकते हैं। आपको मेरे ख्याल से पता होगा, नहीं पता है? नहीं। मैतीज जो है वो वहाँ के ओरिजिनल सेटलर्स है। मैतीज आर मेनली हिंदूज, मेनली वैष्णवाइट्स। ठीक, कुकीज़ जो हैं दे आर मेनली ट्राइबल्स तो हैं, बट ट्राइबल्स में भी अधिकांश जो कुकीज़ हैं उनका कन्वर्जन हो गया है क्रिश्चियनिटी में। ठीक, सो इसमें एंगल फिर बहुत सारी चीज़ों का आएगा, चर्च का आएगा, कन्वर्जन का आएगा, और इनको फिर एक्सटर्नल सपोर्ट का आएगा। तो जैसे ही कुकीज़ और मैतीज़ का विवाद बढ़ा, वैसे यूरोपियन पार्लियामेंट में इसकी सुनवाई होने लगी, मतलब वहाँ पर आवाज़ें उठने लगी। तो संभवतः भारत सरकार को समझ में आ गया होगा कि इस मामले का इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस भी हैं, और फिर इनके म्यांमार से आना जाना, दुनिया भर के ये नारकोटिक्स के भी कल्टीवेशन से इसमें कुछ लोग जो हैं वो जुड़े हुए थे। तो फिर हिली ट्राइब्स, प्लेन ट्राइब्स, वैली ट्राइब्स का मामला, मैतीज़ अपने लिए भी मांग रहे थे वही स्टेटस, क्योंकि कुकीज़ को एसटी मिला हुआ है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स उसको मिल रहे थे। तो इन सब को लेके चूँकि एसटी और नॉर्मल जनरल कैटेगरी का भी वो मसला हो सकता है, वो सब आपसे पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए फिर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।